Nation now. I'm Pradeep Nambiar. Here we talk about news from the nation, Maharashtra and Mumbai. As I say, in every system there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice. Whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. Today we discuss topics that affects the nation. One is the women reservation, which Prime Minister Modi says बहुत लोकतंत्र के इतिहास में बहुत बड़ा कदम. It's a fantastic point. We are joined with our guest from the BJP. We've got Avadhut Wagh Sahab. Wagh Sahab, namaskar, welcome to the show. Bharat Singh ji from the Indian National Congress. Bharat Singh ji, welcome to the show. And Krishna Hegde ji from the Shiv Sena. Welcome to the show, sir. All great eminent speakers. Today Bajaj Sahab is unfortunately not well, so we are having a combined show. And your great distinguished speakers. Sir, we start with what Prime Minister Modi जिस प्रकार से कहा कि women reservation लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक कदम है. It's a quantum jump where democracy is concerned. और जहां लोग सिर्फ 27 साल से सोचते रहे, हमने 2 दिन में उसको पूरा कर दिया. वाघ साहब, is it a quantum jump democracy जिस प्रकार से मोदी साहब ने women reservation नारी शक्ति वंदन अधिनियम को डिस्क्राइब किया है? वाघ साहब, अवधूत वाघ साहब, ओके, माफी चाहता हूँ, योर ऑडियो इज नॉट वेरी क्लियर. भूषण जी, उस ऑडियो को जरा ठीक कीजिए. आई मीन अवधूत वाघ साहब कैन नॉट क्लियर. भूषण जी, उस ऑडियो को जरा ठीक कीजिए. आई मीन अवधूत वाघ साहब कैन नॉट. वी आर अनेबल टू हियर यू. वाघ साहब कैन नॉट हियर मी. भूषण जी, वी आर अनेबल टू हियर यू. वाघ साहब कैन नॉट हियर मी. भूषण जी, अच्छा, भरत सिंह जी, आप सुनाई दे रहे हैं आपको? I can hear you but not clearly. Sir, the question was, Prime Minister Modi has described the Nari Shakti Vandan Adhiniyam as a quantum jump where democracy is concerned. लोकतंत्र के इतिहास में बहुत बड़ा कदम है. And he says जो 27 साल में लोग सोचते रहे हैं, हमने 2 दिन में दोनों चीज कंप्लीट किया. लोकसभा राज्यसभा में उसको कानून बना दिया. अवधूत वाघ साहब. Not only that, since independence, whatever the opposition parties, when they were rulers. Yes, sir. They could not do in their 50, and his government has achieved many times, many-fold more in last 9.5 years. If you see the women's reservation bill, in past also it has come, it was tabled but never resolved. So it has gone unresolved. So there is no point in discussing what happened. I would like to thank all the members of the parliament who has supported this bill and who has passed this bill. This historic bill will pave ways for the woman to participate in the democratic structure of this country. And like 50% आबादी जो है वो महिलाओं की है इसमें. मैं सोचता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है when 50% reservation for women will also come in future. But anyhow, 33% is not bad. We are happy with that. But I look forward for 50% reservation of women in Lok Sabha and Vidhan Sabha as well. I'll just come to Bharat Singh ji. Can you hear me? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा यह ऐतिहासिक बिल है, मगर राहुल गांधी जी ने आपके 20 करीबन सिटीज में प्रेस कॉन्फ्रेंस था जहां आपने कहा कि इसको हम जुमला बनने नहीं देंगे. कांग्रेस का कहना है कि 15 अच्छे दिन और 15 लाख का वादा जैसे इसको जुमला हम बनने नहीं देंगे. भरत सिंह जी, देखिए, नारी शक्ति वंदन बिल जो आया इसका तो हम सभी स्वागत करते हैं. और कि राहुल जी ने भी कहा, सोनिया जी ने भी जो है पार्लियामेंट में कहा. लेकिन मैं समझता हूं कि अगर इस बिल के माध्यम से इस बिल को लाए, लेकिन उसके अंदर अगर ओबीसी का भी एक कोटा जो होता है वो अगर तय कर दिया जाता था तो बहुत अच्छा होता था. लेकिन फिर भी जैसा अवधूत जी ने कहा कि
33% तो ठीक है, 50% की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। 50% भी जो है अधिकार महिलाओं का भी होता है। कहते हैं ना कि कंधे से कंधा मिला के कोई चलती है तो महिलाएं चलती है हर घर में। तो जरूरी है कि 50% हो जाए तो भी बहुत अच्छा है। और कांग्रेस पार्टी तो नामबियार थी, इसको बहुत सालों से इस विषय पे मांग भी कर रही थी और 2-3 बार इसको तो लोकसभा में लेके भी आई। तो ऐसा नहीं है कि जो है श्रेय सबको जाता है इसमें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय जो है देश के प्रधानमंत्री हैं और 303 सीट तो खुद भाजपा की है। तो अगर लेके आए हैं तो स्वागत योग्य है। हेगड़े साहब, हाउ डू यू सी दिस? बिकॉज बीजेपी जहां कह रहा है कि 27 साल लगा लोगों को सोचने के लिए, हम 2 दिन में किए। हेगड़े साहब और राहुल गांधी जी ने लगातार 20 सिटीज में, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि इसको हम जुमला बनने देंगे। भरत सिंह जी ने कहा कि हम स्वागत करते हैं। बट आप कैसे देखते हो हेगड़े साहब इसको? प्रदीप जी, आज जो है महिला सबसे आगे है, पुरुष से भी आगे है और उनको प्रतिनिधित्व तो मिलना ही चाहिए। आपने देखा कि सब फील्ड में, अगर कोको कोला का आप सीईओ देखें कुछ साल पहले तो वो भी महिला थी। बहुत सारे जो मल्टीनेशनल्स हैं उनके हेड महिला हैं। हमारे देश में भी बहुत सारे बड़े पद पर महिलाएं बैठे हैं। तो उनको ये एक पॉलिटिकल फील्ड से बाहर रखना उचित नहीं था। 27 साल भले लगे, लेकिन मोदी जी ने आते ही 2 दिन में ये पूरा जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास कर एक ऐतिहासिक जो नारी शक्ति अधिनियम 2023 जो है उसे बिल को पास कर दिया। इसके अलावा जैसे अवधूत जी ने कहा कि अगर और भी प्रतिनिधित्व उनको मिलता है, 50% रिजर्वेशन मिलता है या 33 से ऊपर मिलता है, तो हम उसकी स्वागत करेंगे। एक बात ये कहना बहुत ज़रूरी है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी ने इसका विरोध किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी जगहों पर कंडीशंस रखी। इसके पहले ओबीसी का कंडीशन रखा, महिलाओं के लिए भी ओबीसी का कंडीशन रखा। इसके पहले मराठा रिजर्वेशंस में भी उन्होंने ओबीसी की बात की। तो कांग्रेस पार्टी जो कर रही है वो है कि ओबीसी और दूसरे घटकों के बीच में एक दरार पैदा करना और उनको लड़ाने की बात कर रही है। देखिए, अगर कोई भी बात हो तो अगर हाँ होना चाहिए तो हाँ होना चाहिए, ना होना चाहिए तो ना होना चाहिए। और राजनीति में हम ऐसे ही काम करते और ऐसे काम करने से ही रिजल्ट मिलता है। और नरेंद्र मोदी जी, आपने देखा हमारे जो सम्मानीय प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने हाँ तो हाँ 2 दिन में पूरा बिल पास किया, तो 27 साल से नहीं हुआ। इसी तरह जो बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कांग्रेस के द्वारा लिए गए, लेकिन मुझे लगता है कि जो महिलाएं हैं हमारे देश की, उनको एक ताकत देने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल फील्ड में भी ताकत देने की ज़रूरत है। आज शायद लोकसभा में 11% महिला हैं, राज्यसभा में 17% महिला है। इसका आंकड़ा भी बढ़ना चाहिए। इसके बाद जो डिलिमिटेशन पैनल है वो बैठेगा और एक कमेटी बैठेगी जहाँ पर जो भी लीगल जानकार लोग होंगे और कोई भी सीट पर रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक जस्टिस के तरीके से, और कोई एक कैंडिडेट के ऊपर अन्याय नहीं हो, जो सिटिंग कैंडिडेट है, वो हिसाब से इसका पूरा प्रावधान किया जाएगा। इसके लिए कोई जुमला नहीं है। हर एक्सरसाइज को एक बहुत प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। इसमें ऐसा भी देखना चाहिए कि कोई कोर्ट में जाके इसके ऊपर रोक नहीं लेके आए, जैसे मराठा रिजर्वेशन में हुआ था। और अगर आपने अमित शाह साहब का भाषण सुना है, हमारे सम्मानीय गृह मंत्री, तो आपने ये सुना होगा कि कल अगर कोई वायनाड कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई लेडीज रिजर्वेशन आए या हैदराबाद में लेडीज रिजर्वेशन आए ओवैसी के कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो उनको लगेगा कि उनके ऊपर एक अन्याय हुआ है। तो किसी के ऊपर ना अन्याय करते हुए एक अच्छी तरह से, अच्छे ढंग से सबको एक यूनिफॉर्म तरीके से लॉफुली, इसमें कोई जुमला की बात नहीं। I'll come to अवधूत वाघ साहब। अवधूत वाघ साहब, नरेंद्र मोदी जी ने कहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हमारे जो स्कीम्स है 9 साल बेमिसाल रहा, 9 साल बेमिसाल रहा है। पिछले
पिछले 11 महीने में हमने करीबन 18 रोजगार मेला ऑर्गेनाइज किया है और 9 रोजगार मेला में 6 लाख अपॉइंटमेंट लेटर्स दिया है। हमने ऑलवेज प्रगति की बात करें, डेवलपमेंट की बात किया है, मगर कांग्रेस इज लेड बाय अर्बन नक्सल्स। मोदी साहब का कहना है कांग्रेस इज लेड बाय अर्बन नक्सल्स, और वो जो भी करते हैं वो खेती में जाके फोटो खिंचवाते हैं, कुलियों के बीच में बैठते हैं या फर्नीचर मार्केट में जाके कारीगर के साथ बैठते हैं। तो ये मोदी साहब का कहना कि फोटो अपॉर्चुनिटीज है। कांग्रेस के मन में कोई इंप्लीमेंटेशन, गरीब का वेलफेयर, पुअर डाउन ट्रोडन का वेलफेयर नहीं है। अवधूत वाघ साहब, कैन यू जस्ट एक्सपैंड ऑन द स्टेटमेंट सर? वाघ साहब, I'm really thankful to Krishna Hegdeji and especially Bharat Bhai, because the starting of this particular debate, both have open-heartedly supported the women's reservation bill. I am really thankful to them. Bharat Bhai being from Congress party, a party from opposition, still he has broad-mindedly supported this bill. I am very much thankful to you, and such positive attitude is expected even from opposition party. Thank you, Bharat Bhai. Thank you very much. The question what you have asked is about unemployment, and opposition always criticize us, saying that where are the employment? Show us. Okay, I will come out only with one example. Before 2014, we used to import all mobile telephones. Now we are number 2 exporter of mobile telephones. That means crores and crores of mobile telephones are being manufactured in India. Now some people are saying they are being assembled. I don't want to go into that, whether they are manufactured or they are assembled. But still, even if you assume that they are assembled, it will not come from the sky. Somebody has to work on it. So just imagine how much employment must have been generated only in mobile manufacturing sector. Just imagine. I leave it on to you. I will give you 2 examples. This I'm talking, whatever I have said is, let us say, from unorganized sector. Let us talk about organized sector. In 2014, the people who were enrolled under Employment Provident Fund scheme and the people who are now enrolled under Employment Provident Fund scheme, it is doubled. That means the people who used to get benefit of Provident Fund till 2014, that means since 1947 up to 2014, 60 बरस में, लास्ट 9 बरस में उतने ही लोगों का प्रोविडेंट फंड हो गया है। द सेम थिंग इज विथ एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम का दायरा 2.7 टाइम्स बढ़ गया है। दैट मीन्स इवन इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वेयर ESIC एंड प्रोविडेंट फंड इज टू बी deducted from your salary, the number of employees getting benefit out of it have increased by 1.7 times. This itself shows that the employment is being generated. Abhi we are working on highways. Highways are not built by air and water. It is to be built by people. So just imagine how much manpower is required to build such highways, such bridges, such infrastructure, such ports, such tunnels. Now, as far as railway is concerned, railway turned down. Railway is changed now. So many Vande Bharat Express, so many special coach factories coming up all over India. They are generating employment. Unfortunately, if you are not ready to see the changing Bharat, then you will always talk negative. We have to appreciate what Bharat is doing. Bharat is prospering. Bharat is aspiring. And Bharat is giving employment to the people who are asking for. Unfortunately, what happens, Maniyar Saab,
I am only SSC pass student and I want a job in multinational company. That is not possible. If everybody wants job in government sector, that is not possible. I will give you one example. Since 1947, our energy sector where we used to produce energy was all government sector. NTPC bolo, MSCB bolo, all were with government. So all energy sector employees were government employees. But now if you see in Maharashtra, Reliance has come, Adani has come, Tata Power has come, and there are so many other small manufacturers of energy. That particular sector is now expanding, but the employment is not government. People want government employment and government employment is limited. ऐसा कहते हैं कि जब राजा व्यापारी होता है तब प्रजा भिखारी होती है. इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, all should go in private sectors. Only defense, police, revenue, foreign policy, all important things should be with government. बाकी एनर्जी बनाना, मैं तो कहता हूं कि इवन रेलवे should be privatized, transportation should be privatized, mining should be privatized. We are now in 21st century. If we have to fulfill the aspiration of people, we have to generate more jobs, and if we have to generate more jobs, we have to develop entrepreneurship. If we have to develop entrepreneurship, we have to encourage people entering into business and industry. Government has got a limitation. I will ask, and because I will, sir, अवधूत साहब ने बहुत जबरदस्त एक्सप्लेनेशन दिया है. भरत सिंह जी, एम्प्लॉयमेंट आपको सब जगह दिखता है. अवधूत वाघ साहब ने गिना के दिखाया है सब जगह क्षेत्र में किस प्रकार से. राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे रोज चिल्ला रहे हैं, खड़गे साहब और राहुल जी रोज चिल्ला रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट कहां पर है. एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं. प्राइस राइज इतना है, इन्फ्लेशन इतना है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, किसानों की समस्या है. भरत सिंह जी, अवधूत वाघ साहब ने गिनाया है आपको, बोला प्राइवेटाइजेशन जरूरी है. नामबियार जी आंकड़ा पता नहीं अवधूत जी ने कहा से आंकड़ा लाया है. मैं आपको बताऊं कि अवधूत जी का एक लास्ट का जो बात उन्होंने कहा कि जिस देश का राजा बनिया होता है उस देश की जनता और वह देश भिखारी होता है. मैं इस बात से सहमत हूं, क्योंकि जो आज देश बनिया नहीं का सर सॉरी सर 1 minute. I have never said बनिया because बनिया is a caste related. 1 minute सर. भरत भाई, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं सब 1 मिनट, मैं क्षमा चाहता हूं. बनिया शब्द का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे कि बनिया एक जात समुदाय से विशिष्ट है. मैं व्यापारी कहा. जिस देश का अगर आप राजा व्यापारी उसकी प्रजा भिखारी. अवधूत जी अगर आप हिंदी के शब्दों को अगर आप समझते होंगे तो जो बिजनेसमैन होता है इंग्लिश में कहते हैं, हम उसको हिंदी में बनिया भी कहते हैं. तो बनिया जात से भी संबंधित नहीं सर, और बनिया जात से भी संबंधित. अगर आपको नहीं तो आप देख लीजिएगा, उठा के देख लीजिएगा, डिस्कशन में पता चल जाएगा आपको. तो मैंने ये कहा कि जिस देश का, आपने एकदम सही कहा और मैं वहीं से शुरुआत कर रहा हूं कि जिस देश का राजा जब बनिया होता है ना तो उस देश की जनता को कटोरा लेके ही हाथ में फैला के और भीख मांगना पड़ता है. और आज हमारे देश की जनता की वही हालत हो गई. मगर आप जैसे लोग जो हैं वो बैठ के अगर टीवी पे अगर ये कहते हैं कि नहीं, हमारे 8 समझिए कि 9 साल में कम से कम अवधूत जी 18 करोड़ नौकरी देने का वादा आपने ही किया था. 2 करोड़ नौकरी देने का वादा तो देश के प्रधानमंत्री ने किया था. और बड़े गर्व से आप जो है आज चैनल पे बैठ के ये कह रहे हैं कि नामबियार जी ने बताया कि 6 लाख नौकरी बांट के और सर्टिफिकेट दे के कह रहे हैं कि देखिए हमने तो कितने लोगों को नौकरी दे दी, हमने तो पूरे देश के जनता की, देश के युवाओं का जो है भविष्य उज्जवल बना दिया. तो 6 लाख नौकरी दे के अगर आप ये कहें कि हमने देश के भविष्य को उज्जवल बना दिया है, नौजवानों के भविष्य को उज्जवल बना दिया है, तो ये पूरे देश देख रही है. 4 साल के स्कीम को आप ही लोग लेके आए ना. जो सेना में भर्ती का स्कीम किसने लाया 4 साल में? आज वो युवा जो है वो जाने के लिए तैयार नहीं है. तो ऐसी योजनाएं जो है वो लाने वाले आप लोग ही हैं. और फिर आप ये कहते हैं कि देखिए हर सेक्टर में हमने जो है नौकरी इतना बढ़ा दिया है, चाहे वो रिलायंस का हो, चाहे वो अदानी जी का हो, हर जगह बढ़ाया.
हर जगह बढ़ाया। पता है आपको क्या बढ़ाया मालूम है? बेरोजगारी आपने बढ़ाया। और आपने कहा कि मैं 10वीं पास हूं, और 10वीं पास होके मैं अगर ग्रेजुएशन की बात करूं, या मैं किसी बड़ी कंपनी में जाके अगर मैं बोलूं कि मुझे मैनेजर बना दो, ठीक है आपने। लेकिन आज वो जमाना नहीं है। आप 1947 से 2023 में आ गए हैं। 2023 में जो है आज पढ़े लिखे, मुझे लगता है सबसे ज्यादा क्वालिफाइड लोग इस समय जो है ना, देश के नौजवान वो रोड पे आके सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, और उनको नौकरी नहीं मिल रही है। क्योंकि आप नौकरी दे नहीं सकते हैं, क्योंकि सारी जगह आप प्राइवेटेशन करते जा रहे हो। जो सरकारी नौकरियां थी नाम्बियार जी, उसको आप खत्म करते जा रहे हैं ये लोग। और वो किसको दे रहे हैं? वो इनके जो प्रिय दो चार साथी हैं, उनको सारा देश दे रहे हैं कि आप जो है थल से लेके, जल से लेके, जमीन से लेके आकाश तक सारा का सारा जो है वो आप जो है अपने मित्रों को दे रहे हैं। जब मित्रों पे इतनी मेहरबानी, देश का कोई राजा जब बनिया बनता है तो इसी तरह से मेहरबानी करता है। और देश के नौजवान और जवान ये जो होते हैं वो देश में त्राही त्राही करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई जॉब नहीं होता है। हर सेक्टर में आज जो है वो, हर सेक्टर, चाहे वो छोटे मोजोले, चाहे वो बिजनेस करते हो, चाहे वो बड़े बिजनेसमैन हो, सब परेशान है। और उसका परेशानी का एक ही जड़ है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। क्योंकि आपने दूसरा चीज कहा, फोटो शूट का जो आपने बात किया, हाँ एकदम, फोटो शूट से अच्छा और क्या बात हो सकती है? अगर आप कहते हैं कि राहुल जी जाके अगर पुलियों के बीच में फोटो खिंचवाते हैं, आप उसको फोटो शूट मानते हैं। लेकिन वो तो कुलियों के बीच में जाते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब फोटो खिंचवाते हैं तो उनके बीच में कोई आना नहीं चाहिए। उनके अगर बीच में कोई आ जाता है तो बहुत बार ऐसे विजुअल्स देखा है देश ने, अवधूत जी, कि देश के प्रधानमंत्री नाराज हो गए हैं और कहा है कि बगल हट जाओ। चाहे वो जेपी नड्डा जी हो गए, चाहे वो नितिन गडकरी जी हो गए, बहुत सारे ऐसे नेताओं को हमने देखा है कि वो नाराज होते हुए देश के प्रधानमंत्री कि मेरे फोटो शूट के बीच में तुम कैसे आ गए भाई, आपको तो आना ही नहीं चाहिए था। तो ये स्थिति है। और आज भी नौकरी के नाम पे कम से कम देश के नौजवानों को आप झांसा नहीं दे सकते हैं। और देश के नौजवान ये समझ चुके हैं। और यही वजह था कि पिछले 3 चुनाव में, चाहे वो कर्नाटक का चुनाव ले लीजिए, चाहे वो हिमाचल का चुनाव ले लीजिए, और अभी जो 7 राज्यों में उपचुनाव हुए हैं वहां का चाहे रिजल्ट ले लीजिए, वो रिजल्ट दिखाता है। और सबसे बड़ी बात नाम्बियार जी, ये दिखाता है कि इनके कैबिनेट मिनिस्टर, जो दिल्ली के सेंट्रल के कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने मध्य प्रदेश का भी जो भाजपा ने दूसरा अभी जो डिक्लेयर किया है सीटों का, इनका गणित जो डिक्लेयर किया है, वो दिखाता है कि भाजपा में कितनी नाराजगी है, भाजपा के लोग कितने डरे हुए, मतलब नेता है इनके, चाहे वो इनका जो कहते हैं कि चाणक्य अमित शाह जी हो गए, चाहे देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी हो गए। जो कैलाश विजय वर्गीय तो कहते हैं कि मुझे तो लड़ना ही नहीं था भाई, मैं तो हेलीकॉप्टर से 4-4, 5-5 जिलों में जाके मैं प्रचार करने वाला व्यक्ति हूं, मुझे क्यों दे दिया गया टिकट? क्या मुझे जो है इस लायक समझा गया कि मैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके चुनाव लड़ूं? तो इनके नेताओं को ये इतनी कदर मतलब स्थिति हो गई है कि आप सेंट्रल मिनिस्टर होके चुनाव लड़ने आ रहे हैं विधानसभा का, ये डर दिखाता है। और ये डर दिखाता है कांग्रेस पार्टी का, ये डर दिखाता है राहुल जी का, ये डर दिखाता है खड़गे जी का, ये डर दिखाता है कमलनाथ जी का। हेगड़े साहब, आप थोड़ा अलग हटके, बीजेपी कांग्रेस, आपने जैसे अवधूत साहब ने पूरे गिनाए कि हमने कैसे पूरे भारत को, पूरे देश को डेवलपमेंट की ओर ले। आज विश्व गुरु, भारत विश्व गुरु, मोदी साहब विश्व गुरु। तो अवधूत वाघ साहब ने कहा, मगर एकदम ऑपोजिट भरत सिंह जी ने उदाहरण दिए कि कैसे कोई विकास ही नहीं हो गया, नो एम्प्लॉयमेंट, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं हो, प्राइवेटाइजेशन पे चला गया है, और वो भी लोगों के कुछ गिने चुने। हाउ डू हेगड़े साहब, एज अ डिफरेंट पर्सन, हाउ डू यू सी दैट? एक है बीजेपी का क्लेम 9 साल बेमिसाल, एक है कि कोई काम नहीं हो गया, कांग्रेस, भरत सिंह जी, हेगड़े साहब। देखिए, ऑपोजिशन का काम है क्रिटिसाइज करना है। भरत सिंह जी 1947 से बोल रहे थे, तो मैं भी 1947 से ही बोलता हूँ। तो 1947 के बाद 25 साल हुए 1972, इंदिरा गांधी जी ने एक नारा दिया, गरीबी हटाओ। उसके बाद 2014 तक सत्ता में थे, ऑलमोस्ट 35 साल, यानी कि 60 साल कांग्रेस सत्ता में थी, और गरीबी तो हटी नहीं, लेकिन गरीबों को वहाँ से हटा दिया। तो इशू ये है कि जो दूसरे को कहता है, पहले खुद के गिरीबान के अंदर तो झांक के देखना चाहिए कि हमने क्या किया। दूसरी बात यह है कि
कौन सा नेता कहाँ पर चुनाव लड़ता है या नहीं लड़ता है या उसको कौन सा पद मिलता है, वो पार्टी का आला कमान तय करता है, हाईकमान तय करता है। उसमें ना कैंडिडेट की कोई सोच होती है, ना लीडर की कोई सोच होती है। वो पार्टी का, पार्लियामेंट्री पार्टी और पार्टी का जो हाईकमांड है वो तय करता है। वो बीजेपी में भी ऐसा है और कांग्रेस में भी ऐसा है। तो कौन कहाँ से लड़ेगा उस पर मुझे जाना नहीं है। वो तो जिसको पार्टी लड़ाएगी उसको तो लड़ना पड़ता है, क्योंकि सब लोग एक डिसिप्लिन सोल्जर रहते हैं पार्टी की। तीसरी बात यह है कि भरत सिंह जी ने कहा कि हम हड़बड़ा गए। देखिए, डर गए आप? 16 मई को एक मेला रोजगार हुआ, 51,000 जॉब्स दिए गए। उसके बाद सितंबर अक्टूबर में, शायद अगस्त सितंबर में और एक मेला रोजगार हुआ, 61,000 जॉब्स दिए गए। प्राइम मिनिस्टर खुद उपस्थित थे वर्चुअल टेलीकास्ट में। लेकिन आप मुझे बोलिए, हमारे जो सम्मान्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो हर महीना मन की बात करते हैं, टीवी पे आते हैं, लोगों से बोलते हैं। G20 के वो लीडर थे जहाँ पर 85% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रिप्रेजेंट हुआ, 19 देशों ने किया। और उसके बाद उनके लीडरशिप में एक ऐतिहासिक कदम उठाया कि अफ्रीकन यूनियन को 20th मेंबरशिप उन्होंने G20 में दी। और आप कहते हैं कि ये फोटो अपॉर्चुनिटी है। अरे ये तो वर्ल्ड लीडरशिप है, इसको फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं कहते, इसको वर्ल्ड लीडरशिप कहते हैं। कि आज व्लादिमीर पुतिन हो या फिर जो बिडेन हो या फिर दूसरे कोई देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो, वो कई कई छोटे देशों के प्रधानमंत्री तो हमारे प्रधानमंत्री के पैर छूते, उनको नमस्ते करते। और जो उन्होंने पूरे विश्व में किया, कोविड में पूरे विश्व का ऑलमोस्ट उन्होंने जान बचाया। यहाँ पर इतना करोड़ों और करोड़ों की संख्या में हमारे देश में 130 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन 2-3 बार मिला, वो भी इन अ स्पेस ऑफ 6 मंथ्स। 44 डेज के अंतर में वैक्सीनेशन मिला है। और उसके बाद जो वैक्सीनेशन पूरे दुनिया में गया है और वहाँ पे लोगों का जान बचाया है, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री का जो रुबाब है या उनकी जो प्रतिष्ठा है पूरे दुनिया में, उस वजह से है। इसको कोई फोटो अपॉर्चुनिटी से हम नहीं बात कर सकते कि फोटो अपॉर्चुनिटी बहुत एक छोटी चीज होती है। हमारा लीडर जो है वो एक विश्व नेता है। तीसरी बात यह है कि ये जो रोजगार मेला हुआ, आज आप देखिए कि महाराष्ट्र सरकार जो है 65,000 गवर्नमेंट जॉब्स ओपन कर रहे हैं, 40,000 जॉब्स प्राइवेट सेक्टर में ओपन कर रहे हैं। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहा है। उसके ऊपर अवधूत जी ने गिनाया कि इतने फ्लाईओवर्स बने। मैं तो कहूँ कि गोवंडी का जो फ्लाईओवर बना, बीकेसी का एक फ्लाईओवर बना, बीकेसी का दूसरा फ्लाईओवर बना, इसका इनफैक्ट एक गोरेगांव में और एक फ्लाईओवर बना, इसका तो इनॉग्रेशन करने के लिए कोई सीएम या डेप्यूटी सीएम कोई गया ही नहीं। इट वॉज थ्रोन ओपन टू द पब्लिक। ये बात आपको लोगों के बीच में लेके जानी चाहिए, क्योंकि ये जो तीनों हमारे नेता है, सम्मान्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, सम्मान्य दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत दादा पवार, ये 24 घंटा लोगों के लिए काम करने वाले लोग हैं। और एक एक दिन में, मैं सीएम साहब के साथ रहता भी हूँ और देखता भी हूँ कि एक एक दिन में 4 शहर छान मारते हैं, वहाँ के अधिकारी को मिलते हैं, वहाँ के गार्डियन मिनिस्टर्स को मिलते हैं, वहाँ के जो किसानों को मिलते हैं, वहाँ के जितने भी घटक है उनको मिलते हैं। या धनगर समाज का इशू हो या मराठा समाज का इशू हो, अभी मनोज जरांगे पाटिल जी का इशू था, उनका पास था, मुख्यमंत्री जी उनसे बात कर रहे थे, हमारे सब मंत्री जी वहां पर गए थे, बीजेपी के भी गए थे, गिरीश महाजन जी थे वहां पे, मामा भुमरे थे, उदय सामंत थे, हमारे अर्जुन खोटकर थे, सभी लोग वहां गए थे। हमने हल निकाला। ये हल निकालने वाली सरकार है, आम जनता के लिए काम करने वाली सरकार है, महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करने वाली सरकार है, लोकहित जनहित में काम करने वाली सरकार है। और बीजेपी लोकहित में और जनहित में नहीं, राष्ट्रहित में काम करने वाली सरकार है। तो मैं आपको एक बात बोलता हूं, यहाँ पर भी जो मुंबई में मेट्रो का जाल फैलाया गया, 350 किलोमीटर का जाल, ओवर द ग्राउंड लोग काम कर रहे हैं, अंडर द ग्राउंड लोग काम कर रहे हैं। नवसेवा सी लिंक है, वो अभी उद्घाटन होने जा रहा है, मुंबई गोवा हाईवे उद्घाटन होने जा रहा है। उसके ऊपर जो कोस्टल रोड है उसका काम तेजी से चल रहा है।
जो जो काम 2.5 साल में महाविकास आघाड़ी सरकार ने रुकाया था वो पूरा काम हमने शुरू कर दिया। और जैसे अब्दुल जी ने कहा, मेरे मित्र ने, कि जितने काम होते हैं उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। और हमारी सरकार महाराष्ट्र में और देश में लोगों के हित में, जनहित में और राष्ट्र हित में काम करती है। वाघ साहब, अवधूत वाघ साहब गोइंग टू भरत सिंह जी, बाद में आप रिपोर्ट कर सकते हो। अवधूत वाघ साहब, एक चीज तो मोदी साहब ने गिना दिया, मोदी साहब ने गिना सबका साथ सबका विकास, आर्टिकल 370, 1 रैंक 1 पेंशन, 1 नेशन 1 टैक्स, जीएसटी। उन्होंने कहा 10% रिजर्वेशन इतनी आसानी से फॉर द पुअर, हमने इतने आसानी से कहा। बट कांग्रेस जहां आपको बोल रहे कि आप कौन सा सबका साथ, मणिपुर में द प्राइम मिनिस्टर नॉट स्पोकन, 150 डेज हो गए, बात ही नहीं किए। और फिर उन्होंने कहा कि हमारे जो कल्याण, गरीब कल्याण स्कीम्स आर मोर पॉपुलर देन एनीथिंग दैट यू हैव डन। इसका कैसे, हाउ डू यू सी दैट, जो मोदी साहब गिना रहे हैं, जो कांग्रेस के एलिगेशंस है, अवधूत वाघ साहब? देखो, नरेंद्र मोदी जी साहब का एक खासियत है, अपना एजेंडा वो खुद बनाते हैं और अपने एजेंडा के ऊपर विरोधियों को चलाते हैं। विरोधियों के एजेंडा पे हम लोग चलते नहीं। उन्होंने मणिपुर किया तो हम राजस्थान करेंगे। राजस्थान में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, आप जरा देखेंगे तो राजस्थान में लास्ट 4.5 बरस में औरत और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के ऊपर जितने अत्याचार हुए उतने लास्ट 30 बरस में नहीं हुए। एट्रोसिटी इज एट पीक इन राजस्थान, करप्शन इज एट पीक इन राजस्थान, हिंसा, दंगल, रायट्स आर एट पीक इन राजस्थान। सो यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं सिर्फ मणियार साहब आपको एक बताना चाहता हूं, 2004 साल में राहुल गांधी जी अमेठी से सर्वप्रथम चुन के आए। 2019 में वो हारे अमेठी से, लेकिन वायनाड से जीत के आए। 2004 से 2024 तो समझो 19 बरस ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एंड देयर इज वन वेरी बिग सो कॉल्ड जर्नलिस्ट सिटिंग इन दिल्ली कॉल्ड एज राजदीप सरदेसाई। वो सुपारी लिए जैसे उनके बारे में राहुल गांधी जी के बारे में उनको सपोर्ट के लिए और मोदी जी के विरोध में हमेशा बात करते थे। वांदा नहीं, ये जर्नलिस्ट है, उसको हक है। लेकिन अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, भरत भाई आपको बताना चाहता हूं कि ये राजदीप सरदेसाई ने स्टेटमेंट दिया कि इन लास्ट 19 years राहुल गांधी हैज नॉट डन एनी रिकॉग्नाइजेबल, जो लोगों के आंख में दिमाग में आएगा ऐसी एक भी कृति राहुल गांधी ने की नहीं। ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, ये आपके लाड़के राजदीप सरदेसाई का है। जो राजदीप सरदेसाई कल तक 10 जनपद के सामने खड़े रहते थे, आज वो उल्टा बात करने लगे। सोचने जैसा है कि झूठ ज्यादा दिन बिक नहीं सकता। कभी ना कभी आपके अंदर के अंतरात्मा को सुबुद्धि होती है और वो सच बोलने का साहस करता है। मुझे 100% मालूम है भरत जी, मैं आपका अभिनंदन इसके लिए करता हूं कि बहुत बेकार पिच में आप अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। भरत जी, आप बहुत खराब पिच में अच्छे बैटिंग कर लेते हैं, अवधूत वाघ साहब का कहना है। बोले कि आपके बैटिंग की भी सराहना करता हूं, आप बहुत अच्छे बोल लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पिच है वही इतना खराब है कि बैटिंग करने के बाद रन नहीं निकलते। तो रन निकलने के लिए अच्छे पिच की जरूरत होती है। जो पिच भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा है वो है, और हमारे बैट्समैन है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इसके लिए हम लोग 3 सेंचुरी मारते हैं और आप 50 के अंदर हाफ सेंचुरी भी नहीं मार सकते। तो इसके लिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है भरत जी, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए, इस देश को बड़ा करेंगे हम लोग मानवता को बड़ा करेंगे और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। आपके राहुल गांधी से कुछ होने वाला तो नहीं है। तो भरत सिंह जी, कैसे आप, जैसे अवधूत वाघ साहब बोल रहे हैं कि
अमित शाह जी ने जो पार्लियामेंट में कहा कि कितने बार लॉन्च किए फिर भी लॉन्च नहीं हो रहा है, तो आप अवधूत वाकसीब ना बोलिए खराब कुछ है क्या? अवधूत जी को मैं धन्यवाद देता हूं। आपने जो ऑफर दिया है वो आपके पास ही रखिए, अपने पास ही रखिए। मैं जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छे से हूँ। रही बात, देखिए शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि सरदेसाई जी ने जो कहा कि राहुल जी ने 19 वर्षों में कुछ नहीं किया, क्योंकि वो क्या ये उन्होंने ये कहा ना कि भाई वो हमारे लिए काम करते हैं। एक पत्रकार किसी के लिए काम नहीं करता, मुझे जो लगता है, चाहे वो किसी भी चैनल का पत्रकार हो। लेकिन अब तो गोदी मीडिया एक नाम दे दिया गया, और गोदी मीडिया जो देख रहा है, देश की जनता देख रही है, उसमें मैं एक नाम आपको बताता हूं, सुमित चौधरी, जो आज तक पे आप आज की तारीख में आते। आखिर उन्होंने क्या गलती किया? उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा ना, नेत्री आपकी सबसे बड़ी नेता स्मृति ईरानी जी को, कि आपके घर में भी तो टमाटर जो है वो खाती होंगी, इतनी महंगा क्यों? तो उन्होंने कहा कि आप तो जेल गए थे ना, पता है आपको। यानी कि आपके जो मीडिया वाले हैं, जरा भी अगर आपके खिलाफ बोलते हैं तो आप उनको जेल की बात करते हो। आपके सांसद हैं रमेश बिधूड़ी जी, किस तरह से संसद में, अवधूत जी शायद आप तो मुझसे बहुत बड़े हैं, बहुत सारे डिबेट आपने संसद में देखे होंगे, बहुत सारे संसदों के जो है लाइव भी देखा होगा। लेकिन जिस तरह से रमेश बिधूड़ी जी ये कहते हैं कटवा, मुल्ला, आतंकवादी, ये दर्शाता है कि जो है भाजपा के नेताओं के सर पे घमंड, या उनके ऊपर बोलते हैं ना नशा, सत्ता का नशा किस तरह से चढ़ा हुआ है। ये दिखाता है कि नारायण राणे जी केंद्रीय मंत्री होते हुए अगर एक सांसद को बोलते हैं तेरी औकात की बात अगर वो करते हैं, वो भी लाइव करते हैं, तो ये दिखाता है कि आपका घमंड कितना सर चढ़ के बोल रहा है। देश के प्रधानमंत्री उस पर कुछ नहीं कहते हैं, और जो है पीठासीन अध्यक्ष महोदय सिर्फ एक वाक्य के लिए किसी को सस्पेंड करवा देते हैं, किसी को निकाल देते हैं, लेकिन उस पर नहीं बोलते हैं। आपकी दूसरी नेत्री है मीनाक्षी लेखी, अगर कोई सांसद महोदया ये कहती है कि अगर कोई बात बोलती है तो बोलते हैं कि आपके घर पे ईडी भेजो क्या। ये दर्शाता है कि भाजपा के सर पे सत्ता का नशा किस तरह से चढ़ के बोल रहा है। और मैं तो चाहता हूं, हम देख रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि ठीक है आप लोग बोलिए, हम विपक्ष है भाई, विपक्ष में तो आप भी रहे हैं। और मुझे लगता है कृष्णा भाई ने कहा कि भाई 70 साल या 60 साल हमने देश चलाया है, तो विपक्ष में 70-60 साल तक आप रहे हैं। लेकिन इस तरह का वाक्य, इस तरह से बदजुबानी और इस तरह की भाषा कभी भी मुझे नहीं लगता है सत्ताधारी कोई भी पक्ष का व्यक्ति हो इस तरह से कहा हो, इस तरह से उसको आतंकवादी कहा हो या उसके जाति पे इस तरह से बोला हो। ये ठीक नहीं है, ये दर्शाता है कि आपको घमंड है। दूसरी बात मैं आपको कहूं, आपने कहा कि राजस्थान की बात की कि राजस्थान में कितना क्राइम बढ़ गया है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ गया है, या छत्तीसगढ़ में बढ़ गया है। एक अभी सर्वे आया था 4 दिन पहले की सर्वे की बात बताता हूं अवधूत जी। उसमें उस सर्वे में पहला ये बताया गया है कि पहले नंबर पे अगर कोई है तो वो महाराष्ट्र है, और 50%, 49% जो है दंगे, जो है जो जातीय दंगे आज की तारीख में जो कराए जा रहे हो रहे हैं, वो आज की तारीख में आज की सरकार के ऊपर ये तोहमत लगाए जो आपकी सरकार चल रही है। वो चाहे शिंदे जी, फडणवीस जी, और जो है अभी जो नए गए हैं 3 पहिए वाले की सरकार में अजित पवार जी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये 4 दिन पहले का सर्वे बता रहा है। तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं ना कि पिच बहुत खराब है। ऐसी पिचों पे बैटिंग करने के लिए कांग्रेस पार्टी बनी है। कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, उसे पता है कि कौन सा पिच कैसा होता है और किस तरह से बैटिंग की जाती है। तो आप कैसा भी बॉल डालेंगे ना, तो उस बैटिंग उसको जो है 6 मारने के लिए हमें आता है। रही बात है ना देश की जनता की, कृष्णा भाई ने कहा कि मन की बात कहते हैं, मोदी जी आते हैं और कहते हैं कि जनता की सारी बातों को सुनते हैं। अरे कृष्णा जी कहाँ सुनते हैं, वो तो अपने मन की बात करते हैं। देश की जनता के मन की बात तो सुनते ही नहीं है, अपने मन की बात बता के निकल जाते हैं। पिछले 9 सालों में आज 10वां साल चालू है कृष्णा भाई। मैं तो कहता हूं मुझे लगता है कि आप भी कांग्रेस पार्टी में विधायक भी रह चुके हैं, आपने देखा होगा कितने जो है देश के प्रधानमंत्री जब हुआ करते थे मनमोहन सिंह जी, कितने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कितना मीडिया से बात किया। देश के प्रधानमंत्री आज तक पिछले 9 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने रूबरू नहीं हुए, क्योंकि वो जानते हैं कि 9 सालों में मैंने कुछ नहीं किया है। देश की जनता को सिर्फ जो है गुमराह
किया है। अगर मुझसे मीडिया पूछेगी तो मैं जवाब क्या दूंगा? तो देश के जनता के मन की बात जो है, आप आते हैं अपनी मन की बात कर लेते हैं, लेकिन देश की जनता के मन की बात आप नहीं सुनते हैं। दूसरा, आपने कहा कोविड के बारे में। कोविड में जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बहुत लोगों की सेवा की, विदेशों में सेवा की, अपने देश की जनता को छोड़ के। और दूसरी बात जो कहा ना कि जो इंजेक्शन बना, जो वैक्सीनेशन हुआ, वो हमारे देश के जो है ना, आप भूल गए। आपको पहले ये कहना चाहिए था कि हमारे जो वैज्ञानिक है, देश के वैज्ञानिक है, उनका ये सबसे बड़ा श्रेय जाता है। देश के प्रधानमंत्री का श्रेय तो बाद में जाता है। वो तो कोई भी प्रधानमंत्री होता है, चाहे वो कांग्रेस का होता है, चाहे वो किसी भी दल का होता है, वो तो श्रेय उसको जाता है कि भाई देश के प्रधानमंत्री है, इनके कार्यकाल में काम हुआ है। लेकिन जो देश के वैज्ञानिक, देश के डॉक्टर्स, उनका कमाल था, उनका मेहनत था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया? 8 बजे आके अचानक लॉकडाउन आप करते हैं, और देश के जो मुझे लगता है हजारों लोग मारे गए कृष्णा भाई, इसकी जवाबदारी कौन लेगा? कप्तान तो उसी को कहते हैं ना कि जीत की जवाबदारी अगर उसकी बनती है, श्रेय वो जीत की लेता है, तो हार की जवाबदारी भी होती है। लेकिन देश की जनता, जो हजारों जनता ने पैदल चल के अपने जान गंवाए, तो उसका जवाबदारी भी भाजपा के सर पे जाती है, देश के प्रधानमंत्री के सर पे जाती है। I know Avdut Wag मैं साहब बोलूं क्या जरा? एक मिनट मुझे 1 मिनट बोल रहे हैं, जवाब देना है उनको। हाँ बोलिए बोलिए, हेगड़े साहब बोलिए, आफ्टर दैट विल कम टू अवधूत साहब। नहीं, भरत जी ने बहुत सही बोला कि साइंटिस्ट लोग ने वैक्सीन मैन्युफैक्चर किया। वो तो पूरी दुनिया जानती है कि साइंटिस्ट लोग ने वैक्सीन मैन्युफैक्चर किया। लेकिन दुनिया ये भी जानती है कि तभी राहुल गांधी जी ने कहा कि कोवैक्सीन और जो दूसरी वैक्सीन है हमारी, वो मत लो, फाइजर का वैक्सीन लो। वो राहुल गांधी जी ने क्यों बोला? अगर आपको देश के जो साइंटिस्ट है उनके ऊपर इतना विश्वास था, आपके नेता को विश्वास था, तो राहुल गांधी ने ये क्यों बोला कि फाइजर का वैक्सीन लो? दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि हमारे नेता बहुत उनको सर में घमंड चढ़ गया है। वुमेन रिजर्वेशन बिल में समाजवादी के लोग, जेडीयू के लोग और आरजेडी के लोगों ने वेल में जाकर हंगामा कर कर वुमेन रिजर्वेशन बिल को 2-2, 3-3 बार वापस लेके आने की जुर्रत कैसे की कांग्रेस के राज में? फिर क्यों जुर्रत? अगर हमने कोई स्टेटमेंट मारा तो वो, अगर आपने कोई स्टेटमेंट मारा तो हम तो रिस्पॉन्स देंगे। लेकिन आपके सरकार में वुमेन रिजर्वेशन बिल उन्होंने फाड़ा वेल के अंदर, और वो वुमेन रिजर्वेशन बिल आपके एलाइज ने वापस लिया। कांग्रेस के टाइम पे सबको मालूम है 2G, 3G, कोयला, सबमरीन, आदर्श, क्या क्या गिनाऊं मैं, वो तो चल ही रहा था सिलसिला। और आपने कहा कि मोदी जी खुद किसका सुनते नहीं है, वो मन की बात करते हैं, खुद की बात करते हैं और निकलते हैं। तो 2014 में 272 सीट्स, 5 साल के बाद 303 सीट्स, और उसके बाद वापस 224 में रिपीट होने वाली है सरकार, और मोदी जी की सरकार। और कांग्रेस की मैं कहूँ, पहले बार उनको 42 सीट्स, उसके बाद 52 सीट्स। अरे 2 लोकसभा इलेक्शन में 100 का आंकड़ा पार नहीं हुआ अभी तक, 90 का भी हुआ क्या पता नहीं अभी तक। और तीसरी बात, आपने कहा कि हमारे नेता इतने घमंडी है। प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री तभी के मनमोहन सिंह जी का ऑर्डिनेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे देश के सामने अगर कोई फाड़ता है तो उसे क्या कहेंगे भरत जी? उसको घमंड कहेंगे? प्रधानमंत्री का अपमान खुले आम प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो भी ऐसा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसे जिन्होंने कुछ बोला नहीं। तो दूसरी बात मैं कहता हूं, देखिए आज भी यूपीए बनी है, पहले यूपीए 1 थी, फिर यूपीए 2 बनी, अभी इंडिया अलायंस बनी। मैं तो उसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहले ब्रिटिशर्स आए थे 1800 ऑड में, वैसे अभी नहीं बनी है। ये ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल है, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। और आज 1 हफ्ता पहले राहुल गांधी ने खुद स्टेटमेंट दिया कि इंडिया अलायंस में प्रॉब्लम्स है, अभी भी प्रॉब्लम्स है। आपने एक मीटिंग बैंगलोर में लिया, उसके पहले एक मीटिंग पटना में लिया, उसके बाद एक मीटिंग मुंबई में लिया, अभी आपका और एक मीटिंग होने जा रहा है, और 3 मीटिंग और 25-25 नेता आने के बाद
आपने सिर्फ यही काम किया कि 74 कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंट किए और 14 जो न्यूज एंकर्स है उनका बहिष्कार किया। इसके अलावा आपके इंडिया अलायंस ने और कुछ किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो मुझे बताइएगा। कुछ कंस्ट्रक्टिव देश के लिए एक भी सुझाव दिया है क्या 6 महीने में कि भाई हम ये अलायंस फॉर्म किया है, अपन हमने, ये हमारा जूना नाम था, ये हमारा, उनका पूरा उद्देश्य ये था कि यूपीए 1 और यूपीए 2 की जो चेयरमैन थी, वो अध्यक्षा थी, वो सोनिया गांधी थी, उनको पद से हटाना था। तो बहुत सफाई से उन्होंने उनको हटा दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया। अभी इसका ना कोई नेता है। देखिए, अगर क्रिकेट टीम, आप बहुत अच्छे पिच पे बैटिंग कर रहे हैं, मेरे जुड़े साथी हो फिलिप पार्ले से, मेरे मित्र भी हो, लेकिन एक बात कहता हूं कि जब टीम अनाउंस होता है तो पहले कैप्टन का नाम अनाउंस होता है। हमारे 38 पार्टी का कैप्टन सम्मान्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और हमारा एक ही कैप्टन है। आप जो भी 40 है, 50 है, 25 आपके हैं, या अभी और कम होने वाले हैं, शायद 22 या 23 जो होने वाले हैं, आप आपका एक कैप्टन का नाम बता दो। चलो एक कैप्टन का नहीं, 5 कैप्टन का नाम बता दो। आपके टीम का 5 कैप्टन का नाम बता दो, मैं मान जाता हूं। आप एक कैप्टन का नाम बताना, बिना कैप्टन का मैच कैसा खेलेंगे? क्या बोलेंगे देश के सामने? हम खिचड़ी सरकार लेके आएंगे फिर से? जवाब दे देता हूँ। बोलिए बोलिए। इधर महाराष्ट्र में भी जी। ऐसा हुआ। जी। उद्धव सर, जी सर, सर, हमारे मुझे साथ लड़े मुझे थे। एक मिनट। ना भरत जी जरा अवधूत जी को जरा बोलना है, कुछ बोलने को, उसके बाद आपके पास आ जाता हूं। आपको बहुत कुछ बोलना है भरत सिंह जी, बिकॉज हेगड़े साहब ने बहुत चार्जेस लगा दिए आप पे, और मित्र भी नहीं, कहा कोई आपको। चार्जेस नहीं लगाया, मैंने सिर्फ आईना दिखाया उनको। यस अवधूत साहब, अवधूत बाग साहब। मैं सिर्फ दो मुद्दों के ऊपर बात करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे मुद्दों का जवाब कृष्णा जी ने दे दिया है। पहले मुद्दा है कि जो बलूची साहब ने लोकसभा में जो स्टेटमेंट दी, जो बात की, उसके ऊपर भरत भाई ने जो बात की उसके बारे में, उस समय एक बहुजन समाज पार्टी के आदमी, अरे वो तो नीच है, नीच को नीच नहीं कहेगा तो क्या कहेगा, ऐसी स्टेटमेंट है। उसके बारे में आपको क्या बात करनी है? प्रधानमंत्री को नीच कहना कितनी कितनी सभ्यता है? और यदि किसी लोकसभा के सदस्य को आप उस्काओगे और उसने रिएक्शन दिया, तो उसमें आपको स्पोर्टिंगली लेना चाहिए। ठीक है, वो बात छोड़ देते। मैं क्या कहता हूं, आपने कहा कि उस स्टेटमेंट के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कमेंट नहीं की, चलो कमेंट नहीं की, लेकिन उदय स्टालिन ने सनातन धर्म नष्ट होना चाहिए, सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है और क्या क्या है, ऐसा बात किया। उसके ऊपर आपके खिचड़ी ने एक भी स्टेटमेंट दी क्या? आपके वो अलायंस पार्टनर है, भारत में 80% लोग हिंदू है, सनातन हिंदू धर्म की निंदा करने वाले आपके साथ बैठे हैं। आप हिंदू द्रोही है, आप देशद्रोही है, आप हिंदू धर्म को बुढ़ाना चाहते हैं, आप क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को भारत में लाना चाहते हैं। आप में लेट मी कंप्लीट भरत सिंह जी से बात करने दो, उसके बाद आप ही को तो बात करनी है। आप हिंदू विरोधी है, आप सनातन हिंदू विरोधी है, ये पहली बात मैं साफ करना चाहता हूं। दूसरी बात, आपने कहा कि सब जगह मोदी मोदी क्यों? मुझे एक बताइए कि हमने तो चंद्रयान 3 यशस्वी किया, जहां लैंडिंग हुई उसका नाम भी उन्होंने मोदी नहीं रखा, और जहां हमारा रोवर नीचे आ गया उसका भी नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं रखा। लेकिन चंद्रयान 1 का जो लैंडिंग पॉइंट था, लैंड नहीं हुआ लेकिन लैंडिंग पॉइंट था, उसको नेहरू पॉइंट क्यों नाम दिया? नेहरू जी का क्या योगदान था? तो आप बोलते हैं कि वैक्सीन में साइंटिस्ट लोगों का योगदान है, चलो मान लेते हैं। तो इसरो में साइंटिस्ट लोगों का योगदान है, नेहरू जी का क्यों? अरे भाई, जो खेल रत्न पुरस्कार है उसको तो नाम देना चाहिए था मिल्खा सिंह का, उसको नाम देना चाहिए था पीटी उषा का, उसको नाम देना चाहिए था खाशाबा जाधव का, लेकिन उसको राजीव गांधी पुरस्कार क्यों? राजीव गांधी कभी गल्लू डंडा भी खेले हैं क्या? गिलोरी भी खेले हैं क्या?
तो उनका नाम तो सभी जगह, स्टेडियम होने दो, रास्ता होने दो, बिल्डिंग होने दो, म्यूजियम होने दो, कुछ भी होने दो, नेहरू और गांधी फैमिली के सिवा आपको कुछ मालूम नहीं। कांग्रेस इसका पार्टी जवाब दे दूं, अभी लंबा नेहरू हो गया। उसके बाद गांधी आप भी कोई देना परिवार है। की खानदानी पार्टी है, उनके लंबा मत गुलाम बताओ। है, उन आपको अपनी सोच नहीं है। आज की कांग्रेस पार्टी अब 1947 के पहले के जवाब कांग्रेस देता पार्टी हूँ। से कुछ भी लेन देन नहीं है। अवधूत जी ब्लड महात्मा प्रेशर गांधी तो ने हाई जो हो जाएगा कहा आपका, था कि वो कांग्रेस ब्लड पार्टी प्रेशर हाई हो को जाएगा। पानी में डुबा जवाब दे देता हूँ। देना चाहिए, आज नरेंद्र मोदी जी महात्मा गांधी ने जो किया है वो ही कर रहे हैं। गठबंधन गठबंधन सनातन धर्म के खिलाफ है भरत सिंह जी। देखिए और देखिए आप भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, परिवारवाद जैसे चार्जेस लगे हैं आप पे। बोलिए बोलिए। नामबिया जी थोड़ा समय दीजिएगा, मैं सबका जवाब दे देता हूँ। देखिए क्या है ना कि जब जब भाजपा के पास अरे कोई पिच नहीं होती है ना खेलने के लिए, तभी हिंदू मुसलमान सनातन हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म हर जात पे आ जाएंगे। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मुझे लगता है नेहरू जी का नाम या इंदिरा जी का नाम या राजीव जी का नाम मरणोपरांत अगर कहीं कहीं दिया गया है तो दिया गया है। जीते जी तो मैं पहली बार देखा कि स्टेडियम का नाम सरदार पटेल जिससे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी कभी जिंदगी में नहीं हो सकते, कभी जिंदगी में नहीं हो सकते। मगर सरदार पटेल का नाम मिटा के आपने जो है मोदी स्टेडियम रखा, ये क्या शोभा देता है? देश की जनता को आप क्या बेवकूफ समझते हैं? देश की जनता को बेवकूफ मत समझिए, देश की जनता बहुत समझदार है। जीते जी सरदार पटेल जी का तो आपने नाम मिटा के नरेंद्र मोदी जी का रख लिया, तब आप इस पे कुछ नहीं कहेंगे। आप नहीं कहेंगे कि ये क्या है भाई, ये खानदानी है कि ये क्या है। मैं बोलता हूँ ना, बोलता हूँ, बोलने का मौका दे दो, दूसरी ठोक दूंगा चीज भाई, आपको। भाई आप तो बोल रहा हूँ, गिना रहा हूँ ना, आप गिना रहा हूँ आपको। अब पोल खोल तो हो रही है, अब तो पोल खोल कर रहा हूं। दूसरा आपने कहा कि भैया मोदी जी बहुत अच्छे बड़े नेता हैं। भाई सबको गर्व होना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री चाहे किसी भी पार्टी का हो, देश का प्रधानमंत्री अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री है तो ये सबको गर्व होता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री। लेकिन व्यक्तिगत अटैक जब किसी के ऊपर होता है ना, वो पार्लियामेंट के अंदर होता है, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर बहुत फर्क है। दूसरी चीज, जब जब उन्होंने कहा सनातन धर्म के ऊपर, पहली बात किसी भी धर्म किसी भी जात पे उंगली उठाने का किसी को अधिकार नहीं है, चाहे वो हमारी पार्टी में हो चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। और कांग्रेस पार्टी ने इसका खंडन किया। आपने कहा किसी ने कुछ नहीं कहा, आप गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चैनल पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं। मैं ये कहता हूं कांग्रेस पार्टी के सभी लोग ये कहा, सारे प्रवक्ताओं ने कहा, मैं भी कहता हूं कि किसी भी धर्म जात पे आपको उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। आपको जो पसंद है आप करिए, क्योंकि यह देश सभी जाति धर्मों को लेकर बना हुआ है, सबको अपना अधिकार है। लेकिन झूठ फैलाने में और झूठ बोलने में भाजपा का कोई शान नहीं है। आप लोग तो इसी पे तो जीते हैं। मैं तो कहता हूं देश में अगर मुस्लिम नहीं होते तो मुझे लगता है भाजपा नहीं होती। आप लोग तो उन्हीं के नाम पे रोजी रोटी अपना चलाते हैं, रोजी रोटी अपना जो घर पर है। और आपने कहा, कृष्णा भाई ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज 40 सीटों पे 46 सीटों पे 55 सीटों पे आ गई। आप याद करिए भाई कि 2 सीटों वाली पार्टी थी भाजपा, 2 सीटों वाली, जिसको विपक्ष का भी अधिकार नहीं मिल सकता था, मगर कांग्रेस पार्टी ने उनको विपक्ष का अधिकार दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं बहुत अच्छा नेता मानता हूं, बहुत देश के प्रधानमंत्री, अच्छे प्रधानमंत्री थे, लेकिन व्यापारी नहीं थे। जिस तरह से आज देश का व्यापार हो रहा है, जिस तरह से आज देश को चलाया जा रहा है, जिस तरह से आज देश को एक तरह से ढकेला जा रहा है गरीबी के मुहाने पे। आप कहते हैं कि गरीबी हटाओ का नारा दिया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, हाँ दिया था और काम भी किया। लेकिन आपने गरीबी हटाओ क्या, पूरे गरीबी हटाओ नहीं, पूरे गरीब को भी खत्म कर दे, हटा ही दे रहे हो। और फिर उसका श्रेय भी लेने आ जाते हो कि 80 करोड़ जनता को जो है हम 5 किलो अनाज भी देते हैं। अरे अनाज क्यों दे रहे हो भैया? आप अनाज क्यों दे रहे हो? आप उनको मजबूत करो ना, सशक्त करो ना। आप उनका अपाहिज बना रहे हो। आप देते तो सही है, हम देते तो गलत है। और रही बात, आप ये कहते हैं कि राहुल जी के ऊपर आपने कहा कि राहुल जी ने बिल फाड़ा था। हाँ, उन्होंने गलती अपनी मानी, लेकिन क्या ये शोभा देता है कृष्णा भाई कि संसद में जिस तरह से जो है अगर गाली गलौज किया जाए, अगर डराया धमकाया जाए? अरे भाई ये तो सब जानते हैं कि ईडी और सीबीआई किसके हाथ में कठपुतली बनी है, कैसे खेल रही है। ये तो देख ही रहे हैं ना, पूरा देश देख रहा है।
लेकिन आप तो ये कह के बता रहे हो, जता रहे हो कि हाँ ये हमारा काम है, अभी तो भेजते हैं। मीनाक्षी लेखी ने कहा, जब मीनाक्षी लेखी जी ने कहा कि ईडी भेजू क्या, तो ये सच्चाई दर्शाता है ना। कभी न कभी अवधूत जी आपने सही कहा कि झूठ झूठ होता है, सच सच होता है, जुबा पे आ जाता है। आ गया जुबा पे मीनाक्षी लेखी के जुबा पे कि भाई ईडी भेजू क्या। अरे आपने बोल ही दिया तो हो गया, ठीक है कि अब जिसके घर पे ईडी जिसके यहाँ पे जाता है दिख रहा है सब। अगर कोई भी अगर नेता हो, चाहे आप ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं, हमारे जो है भाई बोले कि हम तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इनका नाम रखे। अरे भाई आपने तो बहुत कुछ नाम रखा है। देश के नेता, देश के प्रधानमंत्री घमंडिया कहते हैं, इंडिया को घमंडिया बता दिया। अब उनको तकलीफ है, ये अवधूत जी आपको ये तकलीफ है हम अटैक कैसे करें इंडिया पे, क्योंकि इंडिया नाम रखने से कल भारत रख लेते तो क्या करते आप कहते कि भारत बदल देंगे, भारत को नहीं बदल देंगे। इस तरह से नहीं होता है। हाँ ये डर है, ये डर सता रहा है। और कहते हैं ना कुछ दाग अच्छे होते हैं तो कुछ डर भी अच्छा होता है। ये राहुल जी का डर, ये खौफ दिखा रहा है कि आप लोग डरे हुए हैं। हंसिए, बहुत अच्छी हंसी लगती है आपकी, मुस्कुराना भी चाहिए, लेकिन जब 5 राज्यों का रिजल्ट आएगा ना तो उसके बाद आपको समझ में आएगा। और ये डर दिखाता है अवधूत जी, केंद्रीय मंत्रियों को उतारना, केंद्रीय मंत्रियों को उतारना और लड़ाना, ये दिखाता है कि हाँ, आपके पास कैंडिडेट नहीं है। आपके पास कैंडिडेट नहीं है। आपके पास अगर कैंडिडेट होते हैं तो शायद मुझे लगता है केंद्रीय मंत्रियों को नहीं उतारा जाता। सारे लोग नाराज हैं, सारे लोग नाराज है कि अजित पवार के आते ही जो शिवसेना कभी ये कहती थी कि अजित पवार ने जो है हमको खत्म किया, अजित पवार ने पूरी पार्टी को खत्म कर रहे हैं, आज उसी अजित पवार का स्वागत करते हैं। आज भाजपा वाले परेशान है बेचारे कि उनका जो है कोटे का मंत्री जो बनने वाले थे वो परेशान है। लेकिन डर, एक देश के प्रधानमंत्री का डर, एक अमित शाह जी का डर, ये दिखाता है कि सीएम से डीसीएम बना दिया जाता है। जो मंत्री बनने वाला होता है 6-6 बार 7-7 बार जो है भाजपा में विधायक होता है, वो मंत्री बनने के कगार पे आता है। लेकिन अजित पवार जाते हैं और उसका भी जो है खाना खा जाते हैं। खाना तो दूसरे का था, भाजपा आपके नेता का था, लेकिन वो भी खाना अजित पवार जी ने खा लिया। तो ये डर दिखा रहा है, ये डर दिखाता है कि शिंदे जी, अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आती है और शिंदे जी जाते हैं उनके स्वागत के लिए, लेकिन रास्ते से अगर घूम के गाड़ी आती है तो ये डर दिखाता है कि अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है, अंदर जो है बहुत खिचड़ी पक रही है, सर फुटअव्वल हो रहा है। और ये सर फुटअव्वल दिखाता है कि आने वाले चुनाव में आप लोगों की स्थिति आपस में ही लड़ाई में खत्म हो जाएगी। इंडिया गठबंधन में आज जो मजबूती आई है, ये डर दिखाता है कि उस डर की वजह से, उस गठबंधन की मजबूती की वजह से आप लोग केंद्रीय मंत्री को भी उतार रहे हो, आपकी गाड़ी रिटर्न भी आ रही है। और ये दिखाता है कि आगे महाराष्ट्र में अगर सरकार किसी की बनेगी तो महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, हमारे महाराष्ट्र के जो बड़े नेता है उनके नेतृत्व में यहाँ पे महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। और यही डर दिखाता है कि आप लोग जो बोल रहे हैं, आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं, ठीक है करिए, आपका काम है, आप करेंगे। हेगड़े साहब, यस टॉक्ड अबाउट एकनाथ शिंदे जी, चीफ मिनिस्टर के बारे में बात की है कि गाड़ी वापस ले लिए, ये गठबंधन रह नहीं सकते हैं, अजित पवार साथ में चल नहीं सकते, एंड एमवीए इज गोइंग टू विन, दैट्स व्हाट भरत सिंह जी सेज। हेगड़े साहब, नहीं, उनको क्या है, खुद का घर संभालना चाहिए। हम हमारे घर संभालने में सक्षम है और हमारे पास एक रोटी है तो हम 3 बांट के खा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीनों भाई में भाईचारा इतना है कि वो रोटी काट के घर घर में हम बांट के हम ले लेंगे उसको। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि ईडी का डर और सीबीआई का डर, ओके, तो लालू प्रसाद यादव पे और मुलायम सिंह यादव जी पे सीबीआई किसने लगाई? कांग्रेस ने लगाई थी कि बीजेपी ने लगाई थी? स्वाभाविक है कि कांग्रेस ने ही लगाई थी ना। तो वो अभी बोल रहे हैं कि भाई हम सब पे लगा रहे, तो आप क्या झूठ के धुले हुए थे क्या? तभी 50 सरकार आपने ऐसे ही गिराई थी, वो कैसे गिराई थी? सीबीआई लेके ही गिराई थी ना। तो हम करें तो गलत और आप करें तो बहुत सही, ऐसा नहीं होता है। भरत जी, हम भी थोड़ा कांग्रेस के बारे में जानते हैं और बहुत सालों से जानते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने ये कहा कि सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदली कर कर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा, ये सरासर झूठ है। मैं फ़ोन पे इसके लिए था आपके शो पे अभी कि मैं रिकन्फर्म कर रहा था, जो मोटेरा स्टेडियम है वो नरेंद्र मोदी जी के नाम पे है और वो जो जूना स्टेडियम है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के ही नाम पे अभी भी है।
तो कोई नाम ये चेंज नहीं किया। ये कांग्रेस ने गलत फहमी फैलाई है और गलत प्रचार देश में फैलाया है कि जो सरदार पटेल जी का जो नाम का स्टेडियम है उसे बदली कर कर नरेंद्र मोदी जी के नाम का किया है। तीसरी बात यह है कि अजीत दादा पवार ने, आपने कहा अजीत दादा पवार ने शिवसेना को तकलीफ दी और इसके लिए हम छोड़े। तो आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब अजीत दादा तभी फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब उद्धव ठाकरे जी सीएम थे, तो तकलीफ हो रही थी। क्योंकि लोक माजे संगति ये बुक शरद पवार साहब की है, आपके नेता है, महाविकास आघाड़ी के नेता है, आपके एलआई है, उन्होंने लिखा है कि उद्धव जी 2 बार मंत्रालय गए, अधिकारियों को नहीं मिलते थे, घर से काम करते थे या नहीं करते थे, हमारे खुद के विधायक को नहीं मिलते थे, उनके विधायक उनसे चले गए, वो सक्षम नहीं थे उनके विधायक को कंट्रोल करने में, और इसके लिए हमारी सरकार गिरी। हमारे लोग तभी नहीं फूटे, कांग्रेस के लोग नहीं फूटे थे तभी। उद्धव जी के इश्यूज के वजह से ये सरकार फूटी। जब अजीत दादा फाइनेंस मिनिस्टर थे, उद्धव जी सीएम थे, एकनाथ शिंदे जी सीएम नहीं थे। आज अजीत दादा फिर से फाइनेंस मिनिस्टर है, आज एकनाथ शिंदे जी सीएम है, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। और हमको आज कोई तकलीफ नहीं है। तीनों जो हमारे सम्मान्य मुख्यमंत्री है और दोनों सम्मान्य उप मुख्यमंत्री है, तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। तीनों मैच्योर्ड लीडर्स है और तीनों महाराष्ट्र के हित में काम कर रहे हैं। और इसमें बहुत फर्क है कि एक साइड पे बीजेपी शिवसेना का और राष्ट्रवादी का गवर्नमेंट आज है जो 24 घंटा लोगों के लिए काम कर रहा है, और तभी वो जो गवर्नमेंट था उद्धव जी के नेतृत्व में, सिट एट होम, बी एट होम एंड डू नॉट वर्क फ्रॉम होम गवर्नमेंट था। इसमें बहुत सारा फर्क है। और इसके लिए पिछले 1 सालों में 110 विधायक महाविकास आघाड़ी से टूटकर हमारे पास आए हैं, और हमारी सरकार आज 220 के आंकड़े में है। 288 में से हाउस में 220 हमारे पास है इंडिपेंडेंट को जोड़कर, और आपके पास 70 विधायक नहीं है। और आने वाले दिनों में भी यहाँ पर कांग्रेस का और जो आपके गुट का सरकार बनने वाला नहीं है। यहाँ पर बीजेपी, एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत दादा के ही नेतृत्व में ये सरकार फिर से बनने जा रही है 2024 में। और हमारे लीडर नरेंद्र मोदी जी है। तीनों घटक नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए और महाराष्ट्र में लोगों के लिए काम करने के लिए फिर से सरकार बनेगी। सिट एट होम की सरकार यहाँ नहीं बनेगी। we come to the final round. अवधूत वाघ साहब, कांग्रेस का कहना है कि हमारा गरीब कल्याण स्कीम जो है, जो वुमेन्स को पेंशन, 100 यूनिट फ्री, 10 किलो चावल, एसटी में घूमना फ्री, और ये सब जितने स्कीम्स है, that will win them 5 स्टेट, 5 स्टेट वो कांग्रेस इज गोइंग टू स्वीप। दैट इज व्हाट इंडियन नेशनल कांग्रेस इज सेइंग। अवधूत वाघ साहब, मगर मोदी साहब का रिपोर्ट नेशनल, इंटरनेशनल और लोकल बहुत जबरदस्त है। 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, ट्रिपल तलाक, अलग अलग जो सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक से लेके आवास योजना, हर घर से नल जल, हर घर नल से जल। तो ये क्या देखते हो अवधूत वाघ साहब, व्हाट इज द फ्यूचर एनडीए वर्सेस इंडिया एंड इंडिया अलायंस, कैसे देखते हो अवधूत वाघ साहब? ओके, नंबर 1, कृष्णा हेगड़े जी ने मोदी स्टेडियम के बारे में समझाया था। हाँ। मैं भरत भाई आपको बताना चाहता हूं कि ये जो स्टेडियम है, मोदी क्रिकेट स्टेडियम, ये गवर्नमेंट का नहीं है, ये गुजरात स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओनरशिप का है और एक प्राइवेट बॉडी है, अलग संस्था है। और अलग संस्था ने अपने बिल्डिंग का, अपने स्टेडियम का नाम क्या रखना है वो संस्था का विषय है। आप चाहे तो आपके घर का नाम, जो आपका खुद का घर है, उसका नाम आप पिद्दी भी रखिए, हमें तो कुछ लेन देन नहीं है। लेकिन हमें आश्चर्य इस बात का है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब पंतप्रधान थे, तब एक पंतप्रधान ने अपने कैबिनेट में ठराव पास किया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न किताब दिया जाए। और ये जो ठराव था
वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने कैबिनेट में लाया और पंडित जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान होने के कारण उन्होंने वो पास किया और अपने खुद को उन्होंने भारत रत्न दिया। तो अपने खुद को भारत रत्न देने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के इतिहास के पहले प्रधानमंत्री थे। इतने में बात नहीं खत्म हुई, दूसरी बात हुई इंदिरा जी की। इंदिरा गांधी ने भी अपने जीते हुए खुद को भारत रत्न दे दिया। तो खुद ही पंतप्रधान, खुद ही डिसीजन मेकिंग और खुद को भारत रत्न दे दिया। तो इसके बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे? तो आपने बोलना चाहिए, लोगों को मूर्ख मत समझो। आपने इतिहास बदलने की चेष्टा की, हम इतिहास के हर पन्ने को अब खोल कर रखेंगे। आपने वल्लभ भाई पटेल की बात की, वल्लभ भाई पटेल तो कांग्रेस के नेता थे। हमने कांग्रेस के इस बड़े नेता का एक दुनिया में सबसे बड़ा स्टैच्यू बनाया। शर्म की बात है, कांग्रेस का एक भी आदमी आज तक सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस बड़े स्टैच्यू को नमस्कार करने के लिए नहीं आया। क्यों जलन होती है? क्योंकि कांग्रेस में गांधी और नेहरू परिवार के सिवा और किसी भी नेता को नेता नहीं मानते। जब नरसिंह राव की निधन हो गया तो उनको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में लाने से इनकार कर दिया। और हमारे पास इतने क्लिप्स है कि आपके मौनी बाबा पंतप्रधान मनमोहन सिंह ऐसे चुपचाप खड़े हो जाते हैं और जब फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं तो आपकी एक्स फैक्टो प्राइम मिनिस्टर क्या नाम है उनका, सोनिया गांधी को आगे जाके हाथ मिलाती है और मनमोहन सिंह ऐसे के वैसे खड़े हो जाते हैं। तो कहने की बात, एक मिनट अभी सुनो, सुनने की भी ताकत रखो। तो कहने की बात है 60 बरस इस देश का सबसे वाटोला किसने किया होगा? कांग्रेस ने किया है। और इसके लिए कांग्रेस खत्म होनी चाहिए, खत्म हो जाएगी। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम भारत को कांग्रेस मुक्त करके दिखाएंगे। यही वचनबद्धता लोगों के बारे में। फाइनल वर्ड भरत सिंह जी, फाइनल वर्ड बोलिए जी। मुझे दूसरे बोलिए मैं जल्दी से खत्म कर देता हूँ। हाँ। देखिए, अवधूत जी जिस तरह से कह रहे हैं कि मौनी बाबा जो नाम दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में, तो ये तो भाजपा का संस्कार है, भाजपा दे सकती है। लेकिन जो मौन रह के देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने काम कर दिया इस देश के लिए, शायद मुझे लगता है आज के प्रधानमंत्री जिस तरह से बोल वचन दे के भी कहते हैं ना कि चिल्ला के भी कुछ काम नहीं कर सके और देश की जनता को सिर्फ गुमराह किया है और कोई काम नहीं किया है। कृष्णा भाई तो मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ इतना कहूंगा कि जो शिवसेना शिंदे गुट की कोस के, चाहे वो संजय शिरसाट हो, चाहे वो भरत गोगावले जैसे नेता हो, बहुत सारे नेताओं ने एक ही इल्जाम दिया था जब वो शिवसेना, असली शिवसेना छोड़ के आए थे और कहे थे कि नहीं, हमें तो एनसीपी खत्म कर रही थी, हमें अजित पवार खत्म कर रहे थे, हम लोग बार बार समझा रहे थे मगर ये समझ नहीं रहे थे। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि आखिर गलत कौन था। क्या उद्धव जी गलत थे कि शिंदे जी गलत थे? क्योंकि आप लोग ही तो इल्जाम लगा रहे थे, आप लोग ही बोल रहे थे, वो कोई ठाकरे जी या कांग्रेस पार्टी नहीं बोल रही थी, वो कहीं ना कहीं आप लोग ही सब इल्जाम दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आप लोगों के चाल चरित्र और चेहरे में कितना फर्क है। सत्ता के लिए आपने जो है वो शिवसेना तोड़ी और सत्ता के मलाई के लिए ही आप जो है दूसरी पार्टी में गए। और दूसरा चीज, कहीं ना कहीं ईडी का डर सता रहा था। प्रताप सरनाईक के बारे में आप लोग जानते हैं किस तरह से ईडी की पूछताछ चालू थी, किस तरह से परेशान किया जा रहा था। बार बार उन्होंने 2 बार पत्र भी लिखा था कि आप जो है भाजपा के साथ चले जाइए, भाजपा के साथ आ जाइए तो मुझे ये तकलीफ नहीं होगी। ये सार्वजनिक तौर पे उन्होंने ये भी कहा था। तो ये सब दर्शाता था कि आप लोग जो है वो डरे थे सीबीआई और ईडी से, और यही डर कहीं ना कहीं आप लोगों को भाजपा के करीब लेके गया। नहीं तो जो भाजपा चिमटे से भी आपको छूना नहीं चाहती थी, वो भाजपा आपके साथ पार्टी में आती है और शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाती है। कृष्णा जी, मुझे तो अब ये कहीं ना कहीं डाउट होने लगा है कि देखिएगा कहीं ना कहीं शिंदे जी को हटा के फिर से जो है अजित पवार जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। ये आप लोग के घर की बात है, आप लोग देखिए। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं डर था जो आप लोग उनके साथ गए। मैं अगले चैनल पे जा रहा हूँ। हेगड़े साहब, फाइनल वर्ड। 2019 में शिवसेना और बीजेपी साथ में लड़ी थी, कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना साथ में नहीं लड़ी थी। इसके लिए भरत सिंह जी को ये पता होना चाहिए कि मैंडेट हमको दिया गया था और शिंदे जी ने जो किया, वो उद्धव जी ने जो गलती की थी उसको दुरुस्त किया और हम अभी फिर से बीजेपी के साथ है।
और महाराष्ट्र की जनता फिर से बीजेपी और शिवसेना और एनसीपी के मैंडेट को वोट देगी। दूसरी बात यह है कि वो कह रहे थे कि 4 विधायक के ऊपर ईडी थी, उन्होंने प्रताप सरनायक का नाम लिया, लेकिन 110 लोगों ने फ्लोर क्रॉस कर दिया। 4 और 110 में जमीन आसमान का फर्क है, शायद उनको पता नहीं है। तीसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया, तो आर्टिकल 370, राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, 160 वेलफेयर स्कीम्स, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, इतने योजना गिना सकते हैं हम कि इनको मुझे पता नहीं। तीसरी बात यह है कि ये जो इंडिया अलायंस है या ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये हिंदू विरोधी, इसमें से कोई नेता टीका नहीं लगाते, कोई लोग मंदिर नहीं जाते, कोई लोग सनातन को, हिंदू धर्म को कोड कहते हैं, लेप्रेसी कहते हैं, ए राजा HIV कहते हैं, वीर सावरकर का अपमान करते हैं, संजय राउत जी जाके वही राहुल गांधी को गले मिलते हैं। तो इनमें ना नीति है, ना नियत है, ना काम करने की इच्छा है। इनका उद्देश्य यह है कि सत्ता में आए, लेकिन देश की जनता होशियार है, हिंदुस्तान की जनता होशियार है और ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी। ये जो इंडिया अलायंस है, जो नया नया बना है ईस्ट इंडिया कंपनी, इनको लोग, मुझे लगता है कांग्रेस को ये बार 50 भी सीट मिले तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरे तो आपको पता है कि 8-10 जो वहाँ पर उनके एलाइज है, उनके पास एक एक सीट भी नहीं है। और प्रफुल्ल पटेल जी ने ही कहा कि वो जब वो मीटिंग में गए थे शायद बैंगलोर में, उन्होंने देखा कि 8 जो पार्टी है उनके पास एक भी सीट नहीं था, एक के पास एक सीट था। तो स्वाभाविक है कि ऐसे अलायंस से सब हटेंगे और आने वाले दिनों में कांग्रेस के कितने नेता यहाँ आते हैं और हमारा हाथ पकड़ते हैं और मोदी जी के नेतृत्व को सपोर्ट करते हैं, वो देखने वाली बात है। वो उनको आगे चल के पता चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कोई पार्टी तोड़ने जा रहे हैं या ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। बात यह है कि सभी को नरेंद्र मोदी जी फिर से 2024 में चाहिए और प्रधानमंत्री चाहिए, और इसके लिए सभी पार्टी के लोग नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, सभी विधायक सपोर्ट करते हैं, सभी सांसद सपोर्ट करते हैं। Thank you, Hegde Saab, thank you very much, and thank you, Avdut Waq Saab. You've been great. The entire program went off very well. Thank you. Hegde Saab, Avdut Saab, thank you very much for being on the show. As we say, it was a fantastic debate. Very, very well. All the speakers spoke well within the limits, and for everybody to see, it was a fantastic debate. In every system, as we says, there has to be 4 pillars of democracy has to be absolutely firm and fine. Justice, equality, liberty, and fraternity. When you talk about justice, social, economic, and political, when you talk about equality before the law and equal protection of rights, when we talk about liberty, we talk about freedom of speech, expression, faith, worship, and belief. And when you talk about fraternity, we talk about universal brotherhood and believing the territorial and the political integrity of the nation. That's all from now. We'll come with more such news every evening that affects the nation, Maharashtra and Mumbai. For now, it's bye from Pradeep Nambiar, Nation Now. Meet you again tomorrow.